Of the last topic we have started on that, and that was related with the machine learning techniques. So we have started with the model of idea of the machine learning, what exactly it is the machine learning, and what are the three broad categories and the criteria of the machine learning. Now moving ahead, if we have gone already to understand the supervised, unsupervised and the reinforcement machine learning techniques, and if we go for a practical examples in daily life, so we are finding it anywhere. So various examples are there where you can find where the labeled data is already there, you can say it is a supervised. When the data is not labeled, you can say it is unsupervised. When learning experiences come after getting an experiential learning, then you say it is reinforcement learning. So three broad category of the learning are there. Then after, the new topic which comes in a picture is called as a validation technique. What is exactly the validation? So before going ahead, Sir, sorry to interrupt you. yeah, Sir, could you explain what is the meaning of label here? More, can you elaborate it? sure, no issue. फाइन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे एंड एट दैट टाइम वी टॉक्ड अबाउट सुपरवाइज्ड व्हेन द डेटा इज एब्सोल्युटली लेबल्ड. इफ यू सी लाइक यू जस्ट टेक एन एग्जांपल फ्रॉम अ ह्यूमन ब्रेन, जैसे हम लोगों का ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है, तो ऑल द एग्जांपल हैज़ बीन टेकन, जितनी भी मशीनें बनाई जा रही हैं दैट इज एब्सोल्युटली अ रिप्लिका एंड वी आर ट्राइंग टू कॉपी द ह्यूमन ब्रेन्स. हाउ वी स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स? सो बेसिकली वी हैव द टू वेज टू लर्न. फर्स्ट, somebody comes to us and tell us this is a particular thing. कोई हमें आता है और एक चीज़ का नाम बताता है कि this is a thing, you just learn it up. Just taking an example, somebody told us this is a pen, so we say now it is a pen. Somebody told us this is a mouse, so we say that it is a mouse, keyboard, anything. तो जब learning में at the time of a learning, when we are training someone, training a machine, at that time if we are giving a certain name or label to it, then it is called as a supervised. So any example where a label is already given, like taking example anything, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेबल्ड डेटा हैं. इफ़ यू नो इट, इफ somebody told you this is a car, so that's why you are saying it is a car. अब आपने कार को पहचानना शुरू कर दिया कि दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ बाइक एंड दिस इज़ अ स्कूटर. तो जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं दैट इज़ अ लेबल्ड वन, द थिंग हैज़ बीन गिवन टू यू. Then after we comes to the second category where the things are there, you don't have a name of all those things, nobody told you that something is labeled to you, कुछ नाम नहीं दिया गया, कोई लेबल नहीं दिया गया, पर you can be able to classify it with another one. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई बार बहुत सारे, जब बचपन में हम लोगों को बहुत सारी पल्सेस होती थी, दालें सिखाई जाती थी कि ये वाली दाल है, ये वाली दाल है, ये वाली दाल है. एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा. तो हम लोग दाल भूल जाते थे, हमें सिर्फ याद आता था ये काली है, ये पीली दाल है. और पीली में भी अगर दो तरीके की दाल हैं, 2 और 3 टाइप्स आर देयर, तो वी कैन जस्ट क्लासीफाई, एक मोटा है एक पतला है, ए डिफरेंट. सो वी कुड नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली गेट द नेम ऑफ इट. सो व्हेन you don't have a level of a data in your learning, then you go only for classifications. क्लासिफिकेशन के केस में भी यू टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पर चीज़ों का नाम नहीं, जैसे सपोज दैट यू हैव अ 10 एनिमल्स अराउंड यू, 10 डॉग्स हैं आपके चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और 10 डॉग्स के नाम है, अलग अलग नाम आपने रखे हुए हैं. बट इफ समबडी टोल्ड यू कि ये एक ही ब्रीड के 10 डॉग्स हैं और इनके सबके अलग अलग नाम है, सो वुड यू एबल टू रियली रिमेंबर ऑल दोज नेम्स? आप सिर्फ ये क्लासीफाई कर पाएंगे कि यहाँ ये इनमें से 10 हैं और 10 अलग हैं. तो जब भी हमारा डेटा क्लासिफाइड होता है बट विदाउट एनी लेबल नहीं होता, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनादर. मेल इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल. But how many females are standing in a ground? We don't know the name of each and every one. But we classify that it is different from male. Similarly, we are taking any other example related with this, in which we are having the things which is different from another, but what exactly it is, we don't know about that. वो क्या है वो हमें नहीं पता. But important part is only that we have a classification. In this situation we say we don't have a labeled data, labeling नहीं है उस डेटा की, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई टैगिंग नहीं है, but it is different from another one. ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार देखा होगा. इफ सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ 20 ऑफ पेन्स टू यू, ज़रूरी नहीं है 20 के 20 पेन के नाम आपको याद हो, आप कहेंगे या दीज ऑल आर द पेन्स, लेकिन उन पेन्स के बीच में अगर मैं एक पेंसिल रख देता हूँ तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 10 क्लासिफिकेशन. इफ आई आस्क द, दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन. इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू यू, ये पेंसिल किसका है, नटराज का पेंसिल है या किसी और डोम्स कंपनी का पेंसिल है, यू से नो आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई नो दिस इज द पेंसिल एंड दीज आर द पेन्स. ये पेंसिल है और ये पेन है. तो जब डेटा क्लासिफिकेशन में हम जाते हैं एंड एट दैट टाइम वी फील कि वहाँ पर हमारा डेटा लेबल नहीं है, बस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, देन वी गो फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग.
Is that okay? So this is basically a Okay, labeling. Yeah, this is basically a labeling of a data. स्टार्टिंग में हम लोगों को जितनी भी लर्निंग दी जाती है एट द फर्स्ट स्टेज, ह्यूमंस को जितनी भी लर्निंग दी जाती है वो सारी की सारी लेबल्ड होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है. हमें सिखाया गया था ये सर्कल है, देन वी आर एबल टू फाइंड आइडेंटिफाई द सर्कल. हमें सिखाया गया था ये रेक्टेंगल है, तो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ रेक्टेंगल शेप. हमने उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं किया, सिर्फ एक लेबल दिया गया और रटा दिया गया. किसी ने सोचा कि सर्कल को हम सर्कल क्यों कहते हैं? आई सपोज नो बडी थिंक ऑन दैट कि सर्कल को क्यों. किसी ने आपसे कहा था दिस पर्टिकुलर शेप इज अ सर्कल, रिमेंबर इट, दैट्स यू रिमेंबर्ड, या सो यू रिमेंबर्ड इट, दैट्स इट. सो लेबल एंड ट्रेनिंग, देन फाइनली इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ सर्कल. तो सालों से सदियों से वो सर्कल ही चलता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी ने उसको सर्कल लेबल कर दिया. अगर किसी ने उस सर्कल को सर्कल लेबल ना करके समथिंग एल्स कुछ और कर दिया होता, टिंग 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 कर दिया होता, तो हम सारे लोग सालों से उसको टिंग 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 ही बोलते आते, उसमें कोई डाउट भी नहीं पैदा करते, क्योंकि सर्कल बोलने में हमें कोई डाउट नहीं है. तो दिस इज व्हाट द लेबल लर्निंग, जब चीज़ों के साथ आप टैग कर देते हैं लेबल एंड देन यू आर लर्निंग इट अप. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द टुडेज टॉपिक एंड द टारगेट इज व्हाट द वैलिडेशन टेक्निक. सो इफ यू मूव ऑन विद द वैलिडेशन टेक्निक, यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द वैलिडेशन मीन्स. अब पूरे के पूरे प्रोसेस में हम चलते हैं तो वहाँ हमें समझ में आता है कि जब भी हम मशीन लर्निंग के केस में बात करते हैं, इन दैट सिचुएशन वी ऑलवेज रिक्वायर्ड अ सच काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पर हमें जो डेटा हम तैयार कर रहे हैं उस डेटा के साथ हमें ट्रेन करना है अपने किसी मॉडल को. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली कंसेप्चुअल. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलिडेशन टेक्निक इन मशीन लर्निंग, वी अंडरस्टैंड कि अब ये वैलिडेशन वर्ड मशीन लर्निंग से कैसे रिलेटेड है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि मशीन लर्निंग के केस में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा का, क्योंकि मशीन लर्निंग हमेशा बेस्ड होती है किस पर? डेटा पर. इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली डेटा एंड डेटा इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अ मॉडल एंड देन आफ्टर द डेटा इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ मॉडल. पहले ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करने के बाद फिर उस डेटा से हम मॉडल को टेस्ट करेंगे. सो लुक बिहाइंड, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा चेक करते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भी हम वैलिडेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि जिस डेटा के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, जिस डेटा के साथ हम डील करने वाले हैं, वो डेटा किस तरीके से वैलिडेशन पे आता है. तो अगर हम बात करते हैं वैलिडेशन टेक्निक इन मशीन लर्निंग, तो स्पेसिफिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम किस पॉइंट पर जाके डेटा वैलिडेशन का प्रोसेस कर रहे हैं. सो आई एम गोना टू शो वन स्क्रीन टू यू. This is one. So let me know once you would be able to see this screen. I'm sharing it. I suppose my screen is visible. Is this visible? Yes, sir. Thank you, thank you. So come here directly and look at this one, this particular figure I'm going to show you here. This one. I'm zooming it. This one here. So
here if you go for this first one, here in this step you see here the first part is what the data collection. First you see here the arrow which I am moving here is what data collection, and the second part comes with the data cleaning. The second step comes with data cleaning. If we are making a model, now we are moving ahead. After understanding the types of machine learning, we are moving ahead, and now we are trying to understand that how the machine learning is to be done. So in the second step, data collection के बाद we are going for data cleaning. Suppose taking an example, a very simple example, it happens many where कि लाइक आपने सपोज कीजिए कोई डेटा उठाया हुआ है, इन दैट सिचुएशन उस जो डेटा को आपने रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा का मतलब जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सपोज कीजिए एक फाइबर ऑप्टिक्स का लाइन पड़ा हुआ है और फाइबर ऑप्टिक्स के लाइन में कितनी जगह फॉल्ट होता है, जस्ट सिंपल एक डेटा, आपने एक डेटा उठाया कितनी जगह फॉल्ट होता है, ठीक है, और पर 24 आवर्स वन डे के हिसाब से आपने डेटा फॉल्ट्स निकाले हुए हैं कि कितना फॉल्ट आता है। तो आपकी पूरी अगर मुरादाबाद लोकेशन की हम बात करते हैं तो विद इन अ मुरादाबाद लोकेशन इट कुड बी पॉसिबल कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर जगह जगह फॉल्ट्स होते हैं। नाउ द सेकंड थिंग्स कम्स कि ये जो फॉल्ट्स हैं, क्या इन सारे फॉल्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? ये सारे फॉल्ट्स के लिए आपका खुद का एरिया, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ऑल फॉल्ट्स आर हैपनिंग इन द फाइबर ऑप्टिक्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उन फॉल्ट्स को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से फॉल्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और कौन से फॉल्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि सपोज कीजिए अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में कोई फॉल्ट आता है और वो फॉल्ट किसी भी वजह से ऑप्टिकल केबल का खराब होने की वजह से आता है, स्प्लिटर होने के खराब होने की वजह से आता है, जॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कह सकते हैं कि या दिस इज अ फॉल्ट फ्रॉम माई साइड। लेकिन अगर मान के चलिए कि वहाँ पे जो फॉल्ट्स आ रहे हैं वो सड़क बनने का काम चल रहा है या कोई दूसरी गैस पाइपलाइन डल रही है या कुछ और काम हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल काट दी गई है, हो गया, या कोई नेचुरल कामिटीज़ आई, तो आपके इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। तो आपने 24 घंटे में जो डेटा उठाया वो 24 आवर्स का जो डेटा है, उस 24 आवर्स के डेटा के अंदर आपको क्या क्या मिला? उस 24 आवर्स के डेटा के अंदर आपको मिला कि बहुत सारा डेटा ऐसा था जिनके साथ आप कंसर्न थे और बहुत सारा डेटा ऐसा था जिनके साथ आप कंसर्न नहीं थे। यू डोंट हैव एनी बिजनेस विद दैट, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं था। इन दैट सिचुएशन वहाँ पर आपको पहला कार्ट होता है कि डेटा कलेक्ट करना है, देन यू रिक्वायर्ड फॉर द डेटा क्लीनिंग, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने इस डेटा को क्लीन अप करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट, आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द डेटा देन यू नीड अ फीचर एक्सट्रैक्शन। अब क्योंकि आपको मशीन लर्निंग देनी है, मशीन लर्निंग का मतलब है कि जिस वजह से वो फॉल्स हो रहे हैं उन फॉल्ट्स को आप एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं कि वो खुद से आइडेंटिफाई कर ले, इटसेल्फ आइडेंटिफाई कर ले, और इटसेल्फ आइडेंटिफाई करने के बाद में वो पर्टिकुलर मशीन जब भी उस टाइप से उससे रिलेटेड कोई भी फॉल्ट्स आते हैं जिनके लिए खुद ऑर्गेनाइजेशन BSNL रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्टिकुलर फॉल्ट्स ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाए या उनकी इंफॉर्मेशन आप तक आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे स्प्लिटर का खराब होना उसका एक फीचर है, तो आप उसके लिए ये चेक करेंगे कि कौन कौन से फॉल्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और उन क्लीनिंग के बाद में भी इफ़ यू आर गोइंग टू मेक द मशीन लर्निंग, एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को ठीक करे, तो उस सिचुएशन में ज़रूरी होगा कि वहाँ पर आप जाएँ और चेक करें कि फीचर्स कौन कौन से एक्सट्रैक्ट करने। जब आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं देन यू आर गोइंग टू ट्रेन योर मॉडल, तब आप मॉडल को ट्रेन करने चाहते हैं और उसका वैलिडेशन सेट करते हैं। तो होता क्या है कि सपोज कीजिए आपने 1000 ऑफ डेटा सेट उठाया हुआ है। इन दैट सिचुएशन अमंग द 1000 ऑफ अ डेटा सेट व्हाट यू डू, इन दैट पर्टिकुलर यू यूज़ अ सर्टेन डेटा, एंड डेटा में से कुछ पार्ट आप रखते हैं ट्रेनिंग के लिए और कुछ पार्ट रखते हैं टेस्टिंग के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहाँ होता है। सपोज कीजिए अब आपको मैं एज अ मशीन ट्रीट करता हूँ, और एज अ मशीन ट्रीट करने के बाद इन दैट सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आई एम गोना टू शो यू, अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, और उन अलग अलग चीज़ों में बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कोई भी आपको मैंने एक चीज़ दिखाई, आपको एग्जांपल दिया कि ये क्या है, तो आपने बड़े आराम से बता दिया दिस इज द डस्टर, फिर मैंने आपको दिखा दिया फ़ोन, फिर आपको दिखा दिया ये माउस। सो मल्टीपल ऑफ थिंग्स मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, फिर मैंने आपको ये दिखा दिया। ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा चीज़ें मैं आपको चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ और आपको ट्रेन करता जा रहा हूँ। आई एम ट्रेनिंग यू डेटा, एंड अमंग देम ऑल ऑफ सडन आई एम आस्किंग यू समथिंग एल्स विच माइट बी नोन टू यू, विच माइट नॉट बी नोन टू यू। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ डिफरेंट थिंग, दिस वन, taking one example more, and I'm asking what it is. So first you would be able to give me the name of this one easily, you would be able to give the name of this one, similarly this one also, and finally when I am asking to you, so this is what,
This is basically a testing data. Up, if I ask this question to you, what exactly this is, so what would be your answer? What would be your answer? आपका आंसर क्या हो सकता है? अब ये आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, और मशीन जी लर्निंग हमें मॉडल, हाँ, हमें ट्रेन नहीं किया गया ना इस बारे में कि ये क्या है, तो हम बता ट्रेन नहीं नहीं पाएंगे। किया, लेकिन जिन चीज़ों के साथ आप ट्रेंड हैं अब तक, आपका ब्रेन अब तक जिन हम्म, चीज़ों के साथ ट्रेंड है, इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट इट कुड बी, तो आप मोटर कुछ ना लग कुछ रही तो है आंसर तो। निकलेगा आपके दिमाग से। जी मोटर टाइप का कुछ है, ये वेरी मोटर लग गुड, रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपने क्या किया, बहुत अच्छा, आपने इसको मोटर टाइप बोला, वेरी गुड। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? यही मैं आपको फीचर एक्सट्रैक्शन और वैलिडेशन का यहीं पे रोल बताऊंगा, परफेक्टली क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसी एक एग्जांपल से। ये किसी बड़ी मशीन का पार्ट है। ये किसी बड़ी मशीन का एक पार्ट है, बहुत बढ़िया, डन। देखिए, टू पीपल्स गेव मी आंसर टू टू डिफरेंट आंसर। सी, that is what, that is what an answer when unknown data, this is unknown data, this is a test data. When the test data comes, immediately machine start finding a correlation, ध्यान से समझिएगा, machine start finding a correlation with the already data given to it, which is called as a training data. तो जो इसको ट्रेनिंग डेटा दिया गया था उसमें से, जैसे सर का कोई एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि नहीं ये किसी मशीन का हिस्सा हो सकता है, बड़ी मशीन का हिस्सा होता है। आपका जो एक्सपीरियंस था, आपकी जो ट्रेनिंग डेटा सेट में था, उसमें से एक मोटर निकल के बाहर आई, पर एक्चुअली दिस इज एब्सोल्युटली स्टिल नॉट नोन टू यू। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में ना तो इसकी लेबलिंग की गई कभी, ना आपको क्लासिफिकेशन मॉडल में दिया गया, सिर्फ आपका एग्जैक्ट आंसर था। नाउ द थिंग्स कम्स टू हियर द वैलिडेशन। अब हमने डेटा ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद रिस्पॉन्सेज को चेक किया, क्या रिस्पॉन्सेज वैलिडेट होते हैं या नहीं। सो द रिस्पॉन्स कम्स टू द वैलिडेशन व्हेन वी आर क्लोजिंग नियर टू इट। ये मैग्नेट्रॉन है जो कि आपके घर में माइक्रोवेव, जो आपके घर में माइक्रोवेव होती है जिसमें आपका खाना गर्म होता है, ये उस जिसमें आपका खाना गर्म होता है, ये उसका एक हिस्सा है जो मैग्नेट्रॉन मेन माइक्रोवेव जनरेट करता है। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, योर आंसर इज रॉन्ग, द थिंग इज दैट you are only trying to give the information, it means your machine is trying to give the information based on your training data set, and the training data set comes with the testing, and when the testing appears then it comes to the validation. और जब हम टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्ट करने के बाद देन फाइनली वी कम टू द वैलिडेशन प्रोसेस, तब हम वैलिडेशन पर आते हैं। यस, आवर मॉडल इज नाउ वैलिडेटेड, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो थिंग्स आर हियर। जो सेकंड जो आपका टॉपिक है आगे जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसमें यही मेन कंसेप्ट है कि जो वैलिडेशन है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा सेट हमारा लेते हैं मशीन के लिए, क्योंकि अब ये पार्ट तो हमारा डेवलप पार्ट था, हम लोग तो ह्यूमन जिस तरीके से डेवलप्ड हुए कभी इस पर सोचते ही नहीं है कि हमारा ट्रेनिंग किस तरीके का हुआ है या हमने किस तरीके की ट्रेनिंग ली है, नेवर वी थॉट ऑफ। नेचुरली जो मिलता गया वो लेते गए, और जहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, हमारे स्कूल और कॉलेजेस जो होते थे, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग अपने स्टाइल में ली, तो जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए गए थे हम। तो अल्टीमेटली द थिंग इज़ हियर कि जो हमारा ट्रेनिंग वो नेचुरली है, लेकिन जब आप किसी मशीन को बनाने जाएंगे तब आप एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे, और वो डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव ये कहेगा कि मेरी मशीन अगर है तो ये मशीन मेरे इस डोमेन के अंदर ये वैलिडेटेड रिस्पॉन्स दे, क्योंकि मशीन आप ह्यूमन को रिप्लेस करके लगा रहे हो, और इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसका वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा वैलिडेशन नहीं हुआ, मॉडल वैलिडेशन नहीं हुआ, तो मशीन किसी भी नुकसान को पहुंचा सकती है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर एक ड्रोन के अंदर वो मशीन लगी हुई है जिसको कि ऐसी जगह पर बॉम्ब्स गिराने हैं जहाँ पर ह्यूमंस नहीं है, और अगर उसने सही से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं किया तो वो नुकसान पहुँचा सकती है। सिमिलरली मैनी अदर थिंग, जैसे क्रॉप्स के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ड्रोन्स की हेल्प से आजकल हम लोग जहाँ पर पेस्टिसाइड्स डालनी है वो भी यूज़ किए जा रहे हैं। सो मैनी ऑफ द थिंग्स आर देयर वेयर वी आर रिप्लेसिंग द ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, एंड द वैलिडेशन इज मच इंपॉर्टेंट एट दिस केस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा वैलिडेशन करना। So this is all about today's topic, validation technique. So I hope so till now what exactly the meaning of validation, it's clear? That's nice. So now moving ahead, if this particular thing is clear, so let me move on with the type of this. So first of all, the kind of a validation which is given in your syllabus that is being included is cross validation technique. So I'm directly coming on a cross validation technique. And 2 points are here, feature extraction.
We'll go for these two. So again, I'm going to share my screen, and when it is visible to you, let me please know. Yes, I suppose it is visible. It's visible. Sorry. Thank you, thank you. Yes, sir. So now the objective is clear. First we have a data, then after what we are doing it, with the help of this particular data we are training a model, and from after training the model we are finding that this particular model is validated or not. So if you go here and read it out this particular section, you would be able to understand cross validation is a technique फॉर वैलिडेटिंग दी मॉडल एफिशिएंसी. वही बात हमने कही अभी कि मॉडल हमारा कितना अच्छा आंसर देता है. आप लोगों ने यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई एनीथिंग, आप बहुत चीज़ों को सब कुछ अच्छे से पहचान सकते हो. फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. अगर आपको बहुत सारे पेड़ों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और सारे पेड़ों के आपसे नाम पूछे जाएँ तो यू वुड नॉट बी एबल टू गिव. या मैं आपकी टेबल पे लाके कुछ पत्तियाँ रख देता हूँ, सम लीव्स आर गिविंग टू यू, सो यू वुड नॉट बी एबल टू गिव द नेम ऑफ द लीव्स, है ना. सो दैट इज वॉट योर मॉडल एफिशिएंसी. यहाँ पर आपकी मॉडल एफिशिएंसी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. So validating the model efficiency by training it on the subset of input data and testing on previously unseen subset of input data. मतलब जब मॉडल को हम फाइनली डिप्लॉय करना चाहते हैं, देखिए 3 स्टेजेस होती हैं, इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप लेके चलिएगा. फर्स्ट स्टेज ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड थर्ड डिप्लॉयमेंट. ट्रेनिंग का मतलब है आपने डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा की इंफॉर्मेशन अपनी मशीन को दी. सेकेंड आता है टेस्टिंग. आपने उस ट्रेनिंग डेटा सेट में से कुछ डेटा बचाया और जिसके लिए आपने उसे ट्रेन किया था उस पर्टिकुलर डेटा सेट को आप चेक कर करके देख रहे हो कि वो चेक करके सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है. इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ इनपुट डेटा. तो हम जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1000 ऑफ डेटा है, तो 1000 ऑफ डेटा में से 800 ऑफ डेटा, अप्रॉक्सीमेटली 80% डेटा आप रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ द डेटा यू कीप फॉर द टेस्टिंग पर्पस. जैसे एन एग्जाम्पल, अगर आपने अब सपोज कीजिए कोई मॉडल क्रिएट किया हुआ है, कोई भी मॉडल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मॉडल्स में आपको ये आइडेंटिफिकेशंस करने हैं कि वेदर यहाँ ह्यूमंस हैं या नहीं है. तो अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के आपको मिले हुए हैं वो मॉडल, तो थाउजेंड्स में से आपने 800 का आपने रखा हुआ एज अ ट्रेनिंग, और 20% 200 आपने डिफरेंट रखे हुए हैं कि जब मेरा मॉडल तैयार हो जाएगा तब उन 200 में से उठा के मैं सामने लाऊंगा और चेक करके बताऊंगा वेदर इट इज़ ह्यूमन और नॉट. That is what the thing. So if we can also say the technique is check for this one. So in this we check the model is basically working or not. So unseen data में से जो हमारा unseen subset of input data है उस और trained data उसको match करते हैं. So in machine learning there is always a need of a test and stability of a model. It means based on the training data set we can't fit our model on the training data set. For this purpose we reserve a particular sample of data set which was not a part of a training data set. After that we test our model on the sample before deployment, and this complete process comes under the cross validation. This is something different from the general train test split. तो आपको समझ में आ गया ना क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ. तो सर ये जो टेस्टिंग डाटा हम चूज करते हैं 30% के अराउंड या 20% के अराउंड, तो वो क्या रैंडमली चूज करते हैं या रैंडम चॉइस? बिल्कुल एब्सोल्युटली रैंडम चॉइस होती है. अच्छा, ये 70% और 30% जो होगा वो रैंडमली होगा कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल रैंडम चॉइस होगा, बिल्कुल रैंडम चॉइस होगा ये. श्योर. अच्छा. हाँ 100%. ये बिल्कुल ठीक है. तो अब इसका मतलब समझ गए ना, आपका खुद का कलेक्टेड डेटा है, उस कलेक्टेड डेटा में से आपने रैंडमली 20% डेटा निकाला हुआ है और वो रैंडमली 20% डेटा ये चेक करके बता रहा है कि वेदर इट इज़ वैलिडेटेड और नॉट. तो इस प्रोसेस को हम लोग जो नाम दे रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस वैलिडेशन प्रोसेस, है ना. दैट इज़ व्हाट द गुड थिंग. तो अभी I'm just opening my LinkedIn account also, in which I have posted one similar kind of an image there. Just stay with me.
जब तक आप इसके थोड़े से टाइप देख लीजिए. सो हियर इफ यू गो फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं यहाँ पर. रिजर्व इज सबसेट ऑफ अ डेटा सेट एज अ वैलिडेशन डेटा सेट. Provide the training to the model using training data set. Now evaluate model performance using the validation set. If the model performs well with the validation set, perform the further step, else check for the issues. So this is what called as a validation. मेरे ख्याल से आपको इन 3 पॉइंट से, 3 स्टेजेस से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग ऑन. आप लोग पढ़ लीजिए इन 3 पॉइंट्स को एंड लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर. If please any issue persist, if not clear, then please let me know. Sir, that means among the whole data set, we have to choose a part of it that is called training data set. Right. And a part of it for the post validation purpose that is called a validation data set. Very Am I right. right? Very true. Okay. That's very right. Very right. So I suppose this is very much clear कि how this actually the cross validation is working, because from the input data itself, input data में से ही we are choosing a certain random piece of data on which we are testing. That's why it is called as a cross validation. And before deployment, I am again saying training, टेस्टिंग एंड देन फाइनल स्टेज इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब वो यूज़ में आ गया. अब आपको उसको मॉडल को दे सकते हैं आप किसी को भी, इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ यूज़. बट बिफोर दैट, उससे पहले आपने उसका क्रॉस वैलिडेशन किया, और क्रॉस वैलिडेशन आपने उसी डेटा सबसेट में से किया. दैट इज़ व्हाट द स्पेशल थिंग. तो आई सपोज इज क्लियर. एंड वी हैव फ्यू मैथड्स ऑफ डूइंग दिस. These are the methods that will be shared with you. ये आपके फाइल जो है that will be available in the drive as well as मैंने आपका अकाउंट है जो ML वाला जो आपका WhatsApp ग्रुप है, in that there is one Google Drive link in which all the related and relevant documents and as well as the information or the contents are stored. वो accessible है आप लोगों के लिए, आप उसे कभी भी access कर सकते हैं. So here are we few methods are here. Which are basically used for the validation purpose. So you please read it out. The first is the validation set approach. Leave peak out cross validation, leave one out cross validation, k-fold cross validation and stratified k-fold cross validation. ये आपकी बेसिकली 5 तरीके की अप्रोचेस यूज़ होती हैं जो क्रॉस वैलिडेशन में की जाती हैं. तो अगर क्रॉस वैलिडेशन पूरी तरीके से क्लियर है, सो आई मस्ट प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. मैं आपका एक जी सर. जी. What are these approaches? These 5 approaches. What does it mean? Pardon, not a bit audible. Please again. So please detail about the approaches. I'm going to give the details of these. I'm going to give. Okay. So if the cross validation terminology is clear, then obviously the rest I will take care. So before going to here, I'll show you one more thing. Just coming up back again here, and before that let me show you on my LinkedIn screen. I suppose it's clear. This is a thing which is posted on my LinkedIn account and I worked on that. See here. Just a minute. This one. I suppose screen is clear. So this is a one kind of a model in which I did cross validation process. If you see here, I developed one model in which I was having more than 10,000 such kind of images in which the whale was there in a water. It is a water, shallow water, in which the whale is there.
and some of them are like this one where the whale is not. It means no whale to exactly to up to 100% of whale. There were large number of the data. बहुत सारा डेटा मेरे पास था जिसमें इस वाटर में वेल थी और वेल नहीं थी. नाउ द थिंग इज दैट अब मशीन क्या कर रही है, तो मैंने एक मॉडल डेवलप किया जो जिसका कि मैंने नाम रखा वेल क्लासिफायर, इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल क्रिएट किया और इसमें क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को यूज़ किया. क्या क्रॉस वैलिडेशन? 80% डेटा से मैंने उसको रैंडमली ट्रेन किया एंड 20% डेटा मैंने उसको सैम्पल टेस्टिंग के लिए रखा. सैम्पल टेस्टिंग में से ये दो इमेजेस की मैंने इमेजेस ली थी जिसमें एक में वेल दिखाई दे रहा था और एक में ये वेल नहीं दिखाई दे रही थी. लुक एट हियर केयरफुली. जब मैंने इस इमेज को एज एन इनपुट कराया, टेस्ट कराया अपने मॉडल के अंदर, देन इट शोज मी आंसर प्रिडिक्शंस फेस 100%, नॉट फेस 0%. सो आई टुक टू आंसर्स फ्रॉम द मॉडल. व्हाट आर दीज टू आंसर? कि ये वेल फेस है या नहीं है. तो आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा. इज इट क्लियर? Everyone can easily tell जी. whale is visible. So machine, ये आप लोग देख पा रहे हैं, the machine is also giving me answer 100% the face is there and not faces is 0%. But when I gave this second image, so what is the efficiency of my model? My model says 99.97% is not a face and 0.03% it is finding, it is extracting the feature and saying yes, some phase is there. अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए इस शैलो वाटर के अंदर वेल अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा, और ट्रू प्रेडिक्शंस दीजिए जो आपको दिखता है. नहीं 0.03% ही है. ये मेरा मॉडल प्रोडक्शन है. आप लोगों को पानी देखिए सिर्फ और देख के बताइए कि Not appearing. not appearing. Appearing sir. Appearing. That's good. That's good. That's good. वो व्हाइट वाला बीच में जो है वो उसका दांत दिखाई दे रहा है. That's good. See, that is what actually the model validation. I suppose now you got the point. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा what I want to make you. कि see how much efficient the human brain is there, but is still the human brain is getting a bit confusion when I'm talking about this one. And under this situation, the machine is giving how much of accuracy? It is giving an accuracy up to 99.37%, and saying that there is no face of a whale. But if we see here and by eyes we get confused a little. हम लोग भी देखते तो हम लोग को देख के लगने लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि शायद इन द शैलो वाटर कुछ ना कुछ है, वहाँ पर वेल है. तो सी दैट अप टू दैट लेवल ऑफ प्रिसाइजनेस वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल. और ये मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले, ये मॉडल अगर मुझे कहीं भेजना है, किसी को देना है, सपोज कीजिए कि फिशरमैन्स ही हैं और फिशरमैन्स को स्ट्राइक करना है, वहाँ से फिशेस को पकड़ना है, उनको कहीं मॉडल देना है, तो उनको ये मॉडल देने से पहले आई हैव टू इंश्योर दैट इट मस्ट बी यूज प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जहाँ पे फिश है वहाँ अटैक करना है, यहाँ फिश है वहाँ अटैक नहीं करना. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. सिमिलर नंबर ऑफ सिचुएशन इट कम्स. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं. आई विल शो यू वन मोर वीडियो इन विच आई हैव टेस्टेड द डेटा. And you would be able to understand this all cross validation process. तो हम जब भी डिप्लॉय करते हैं मॉडल को किसी को देने से पहले उसकी खुद टेस्टिंग करते हैं. हम लोगों के NVIDIA के सर्टिफिकेशंस होते हैं. सो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू सी दिस वीडियो. This is the object detection. And this is one object detection method I'm using here. And with the help of this camera, if you see here, if you are able to understand, see that
here it is being written as bottle. It is identifying and the percentage of match is also coming up. It appears bottle. It appears as a, now when the frame comes, it is telling an answer book. It is identified it is a person. It is giving cup and matching 82%. This is all real time. ये बिल्कुल रियल टाइम में हो रहा है, जिसमें अपने कैमरे की हेल्प से एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है जो मॉडल आइडेंटिफाई करके बता रहा है ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस को. It is giving answer keyboard, लैपटॉप. It means मॉनिटर स्क्रीन जब आया उसने लैपटॉप के साथ सिमिलरिटी फाइंड आउट की और बताया. फ्लावर पॉट उसने आंसर दिया. मीनवाइल मैं अपना लिंक्डइन आईडी भी शेयर कर दूंगा. इट इज़ अवेलेबल देयर इन माय पोस्ट, तो आप इसे देख सकते हैं. सो द थिंग इज हियर, सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, वैलिडेशन ऑफ डेटा. सो वैलिडेशन ऑफ डेटा कम्स विद द टेस्टिंग. तो ये मैंने एक जो मॉडल बनाया हुआ था उस मॉडल से हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे थे. ये मॉडल बिल्कुल डिप्लॉयड है और टेस्टेड है. जब मैं कैमरा लेके जाऊंगा तो वो कैमरा लेके आइडेंटिफाई करके बता देगा ये कीबोर्ड है, और परसेंटेज ऑफ मैच ही बताएगा कितना परसेंट मैच होता है ये कीबोर्ड के साथ, कितना परसेंट मैच होता है ये बुक के साथ, एंड एवरीथिंग इज दैट. सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ क्रॉस वैलिडेशन. नाउ just a minute. Cross validation. जी. So we divide our input data set into the training set and test or validation set. Approach, both the subsets are 50% of the data set. Generally, if you have a small data set, we divide into the form of 50%, but generally we go for maximum 80 to 20%. 80% random हम choose करते हैं किसके लिए, चूज़ करते हैं हम ट्रेनिंग के लिए, और 20% चूज़ करते हैं हम लोग फॉर टेस्टिंग पर्पस. सो लीड पी आउट क्रॉस वैलिडेशन फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर. इन दिस अप्रोच द पी डेटा सेट, it's not fixed. A P data set, any number of P are left out by the training data. It means if there are total n data points, अगर n data points है in the original input data set, then n minus P data points will be used for the training data set. अगर आपके पास n है तो n में से P data set आप छोड़ देते हैं, ठीक है, and n minus P data set points will be used for the training data set, and P data points are used for the validation set. So this is the combinations to be used, and the P will be depending upon the situation where it is being required. So this complete process is repeated for all the samples, and the average error is calculated to know the effectiveness of the model. तो आपने अपने पूरे डेटा सेट को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे P डेटा सेट्स में, और उनमें से भी आपने n माइनस पी किया और n माइनस पी करके सबसेट्स निकाले, उन सबसेट्स के भी आपने आउटपुट्स निकाले, एंड देन फाइनली यू आर मेकिंग इट एवरेज. सो दिस इज लीड पी आउट इन विच वी यूज दिस. लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन. In this, we go for this method is similar to the lead P out cross validation, but instead of P, we need to take one data set out of training. It means in this approach, for each learning set, only one data point is reserved. केवल एक हर learning set के लिए आपने suppose कीजिए thousands of learning sets हैं, data के अंदर भी data sets होते हैं. So under set, only one data point is reserved, and the remaining data set is used to training the model. The process repeats for each data point, hence n samples will get the n different training data set. I suppose you might be getting it. देखिए मैं फिर से एक बार इसको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ what we are doing here. हमारा क्रॉस वैलिडेशन का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि पूरा का पूरा जो डेटा सेट है उस डेटा सेट में से सर्टेन पॉइंट्स को आपको ट्रेनिंग के लिए और सर्टेन टेस्टिंग के लिए रखनी है. नाउ वी आर चेंजिंग अप द प्रोसेस. अब चेंजिंग अप द प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विद दिस validation set approach first, in which we are using the 50%. Then we come to the lead P out cross validation. Lead P out cross validation में हमने क्या किया, हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट था उसमें P डेटा सेट्स हमने लेफ्ट आउट किए ट्रेनिंग के लिए. इट मीन्स इफ देयर आर n डेटा पॉइंट्स. डेटा पॉइंट्स का मतलब समझते हैं आप लोग? डेटा पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आप किसी ऑब्जेक्टिवली सपोज कीजिए वेल और वाटर. अब यही हमारे डेटा पॉइंट्स थे कि सपोज कीजिए कि वेल और वाटर का जो आपने कॉम्बिनेशन यूज़ किया, इसके लिए आपके पास में 10,000 इमेजेस हैं. इन द 10,000 इमेजेस देयर विल बी अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ वन इमेज इन विच द वेल इज़ देयर, एंड द रिमेनिंग माइट बी पॉसिबल. रिमेनिंग जो होंगी उनमें ये होगा कि जहाँ पे वेल्स का परसेंटेज ऑफ क्लैरिटी विल बी डाउन.
और एक इमेज ऐसी होगी जहाँ पे 0 है। तो हम क्या करते हैं, इनके सब सेगमेंट्स कर लेते हैं इन विच 30% ऑफ विजिबिलिटी, 50% ऑफ विजिबिलिटी, 60। तो जब हम अपने डेटा को ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट में तो उनको बोलते हैं डेटा पॉइंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप वेदर फोरकास्टिंग पे काम कर रहे हैं और वेदर फोरकास्टिंग पे आपने सपोज कीजिए टेम्परेचर मेज़र करना है 24 आवर्स का। तो आपने कहा कि 24 आवर्स का जो टेम्परेचर है वो हर कंटिन्यूसली मूवमेंट पे तो चेंज होगा नहीं, हर मिनट तो चेंज होगा नहीं। तो आपने क्या किया, आपने स्लॉट्स डिवाइड कर दिए 30-30 मिनट्स के, 30-30 मिनट्स के स्लॉट या 40 मिनट्स के स्लॉट डिवाइड कर दिए या कुछ घंटों के स्लॉट डिवाइड किए, जिसमें आपने सोचा कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक सा रहता है, तो मेरा एक डेटा सेट पॉइंट हो गया। 6 से 8 तक का एक रहता है लगभग, तो डेटा सेट पॉइंट एक अलग हो गया। 8 बजे के बाद से अगर एग्जांपल लेते हैं तो 9 साढ़े 9 तक का लगभग ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में 10 बजे से एकदम टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है, तो 12-1 बजे तक अलग हो जाता है। तो आप अपने कंप्लीट डेटा को फॉर योर स्टडी पर्पस, फॉर योर कन्वीनियंस पर्पस, यू डिवाइड इनटू द वेरियस पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा पॉइंट्स। इनको हम डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, और जब आप इस डेटा पॉइंट में से जो आपने चूज़ किए हैं ट्रेनिंग माइनस करके यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो इसको n-p। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि जब आप p का सेट चूज़ करते हैं तो उसको लीव p आउट बोलने लगते हैं। जब आप हर डेटा पॉइंट में से केवल एक यूज़ करते हैं, एक ट्रेनिंग के लिए से आपके पास में 10,000 थे, 10,000 के आपने हज़ार के 10 सेट बना लिए, और 10 सेट में से आपने 10 डिफरेंट इमेजेस निकाल ली, तो आपने उसको बोला लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। दैट इज़ वन थिंग। Then we are looking for the next k-fold cross validation. In k-fold cross validation approach divides into the data set into k groups of samples of equal size. पूरे डेटा को डिवाइड कर दिया इक्वल ग्रुप में। 10,000 का डेटा है, 10,000 के डेटा को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 100 के 1000 सेट बना दिए। Similarly, these samples are called as a fold. इनको fold का, for each learning set the prediction function use k1 fold. एक यूज़ किया आपने k1 फोल्ड के लिए, the rest of the folds are used for the test. एक पूरा का पूरा फोल्ड आपने बना लिया किसके लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए, और बाकी के बाकी जितने भी थे वो आपने रिमेनिंग बना दिए ट्रेनिंग के लिए। तो दैट इज ऑल नथिंग बट जस्ट ओनली वे आउट कि आपका ही सामान है, आपका ही डेटा है। अगर आप पूरे के पूरे डेटा सेट को 50-50% में डिवाइड कर देते हो तो आपका पहला अप्रोच बन जाता है वैलिडेशन अप्रोच। अगर आप इसमें से पी के सबसेट निकाल देते हो तो आपका पी लीव आउट बन जाता है। अगर आप उसमें भी एंड पॉइंट डेटा करते हैं, एक एक चूज़ करते हैं, तो वो आपका एंड का बन जाता है, वन क्रॉस वैलिडेशन बन जाता है। और आप इस के में डिवाइड कर देते हो, पूरा का पूरा एक सबसेट यूज़ कर देते हो वैलिडेशन के लिए, तो के फोल्ड बन जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट। सो आई होप सो दिस इज़ मच क्लियर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वैलिडेशन प्रोसेस। सो इफ़ एनीवन till now has any sort of doubt can ask me this. सर टेस्टिंग के लिए जो हम डाटा रखते हैं जी, वो मतलब अगर हम जैसे 30% या 20% रखते हैं, मान लीजिए 80% हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, अगर हम उसको बढ़ा दें परसेंटेज को जी, या कम कर दें जी। तो उससे हमारी जो हमारा जो प्रोसेस है ये वैलिडेशन का, तो उस पर क्या असर पड़ेगा कुछ? देखिए, वैलिडेशन के प्रोसेस पर तो ये बढ़ जाएगा कि आप जितने लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ टेस्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, उतना ही एफिशिएंसी इंप्रूव होने के चांसेस होंगे, ठीक है। पर उतना ही इम्पॉर्टेंट ट्रेन करना भी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको 1 से 100 तक की गिनती सिखाई गई है, तो भी तो आपसे कहा जाएगा कि नंबर 7 दिखा के पूछा जाए कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे इट इज़ 7। अगर मैं नंबर आपको दिखाऊं 99, तो आप कहेंगे यस इट इज़ 99। लेकिन अगर मान के चलिए आपने 20% से तो ट्रेन किया, 1 से लेकर 100 नंबर के बीच में आपने केवल 20% से ट्रेन किया, और 20% से ट्रेन करने के बाद में आपने रिमेनिंग डेटा टेस्ट में रख दिया, तो आपने 1 to 20 सीखा था और आपने उसको नंबर दे दिया 29, फॉल्स हो जाएंगे। क्या होगा, प्रेडिक्शन फॉल्स हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द थिंग, ठीक है। और डन। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम अगर और है तो आई वॉन्ट टू पुट अ लिटिल मोर एम्फेसिस ऑन फीचर एक्सट्रैक्शन। मैं थोड़ा सा फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर और एम्फेसिस दूंगा वैलिडेशन के बाद में। फीचर एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद में रिडक्शन वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, इफ़ यू हैव अ टाइम। ठीक है सर। डन। तो फीचर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फीचर्स, व्हाट एग्जैक्टली द फीचर। मशीन लर्निंग में फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये फीचर्स होते क्या हैं, एनीवन?
On the basis of one data validation is done. On the basis of these features, data validation is performed. ठीक है सर। और डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या क्या वैल्यूज हैं किसी पर्टिकुलर केस में या कोई ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग पैरामीटर्स कितने कितने होते हैं, तो वो फीचर्स होते हैं उसके। वो उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है फीचर? आप लोग जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कभी आपने कभी की फीचर्स पे कभी काम किया है? कभी कभी या आप किसी भी चीज़ में आप ये फीचर वाला पार्ट कभी यूज़ करते हैं आप एनीवेयर? आप फीचर लगा देते हैं चेहरे पे फीचर हमारा कलर भी तो हमारा फीचर है, हमारा जो चेहरा है शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो फीचर, बाल सही कर लिए, बाल छोटे करा लिए, बाल बड़े कर लिए, वो सब फीचर्स हैं हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे एक फीचर्स का हिस्सा हो गया। और जैसे कोई भी ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, स्कैनिंग की डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमारे को ये फीचर चाहिए कि वो मेल भी कर पाए, शेयर भी कर पाए, या पीडीएफ में चाहिए, जेपीईजी में चाहिए, तो इस तरीके के फीचर्स। बहुत बढ़िया, मतलब दैट्स ऑलमोस्ट कमिंग द गुड आंसर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इन अ मोर सिंपल वे। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट क्योंकि फीचर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है मशीन लर्निंग के लिए, और एग्जैक्टली इट इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़, वी अंडरस्टैंड दैट। ये आपको एक लोगों को कार दिखाई दे रही है विजिबल, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई भी दुनिया की कार हो, यदि आपने देखी हो या नहीं देखी हो, उसका मॉडल आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप उसको कार कह पाते हैं, यू कैन से इट अ कार, इजंट इट और नॉट? चाहे कोई सी भी कार हो, आपने अगर कहीं भी आपके सामने खड़ी कर दी जाए, यू कैन एबल टू से इट कार, कार कह पाते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेकिंग यू इनेबल टू डिसाइड दैट द कार इज अ कार? आप ध्यान से देखिए, जब आप किसी कार को, मैं कहूँ आपसे पूछूं क्वेश्चन कि आपने इसको कैसे पहचान लिया कि कार है, बस नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? किस फीचर को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बस नहीं है, कार है? शेप देखेंगे पहले उसका। बहुत बढ़िया। द फर्स्ट फीचर यू फाइंड आउट, वेरी गुड, सबसे पहले आपने उसकी शेप को निकाला, वेल डन। सो अगर मैं बात करूं, वही शेप की बात करूं कि एक कार है और एक उसी शेप से मिलता मिलता आपका जो एक ये जो ऑटो होते हैं, है ना, लगभग लगभग वैसे ही, तो अगर उसको कहा है, फिर आप किस चीज़ पे जाते हैं? सेकंड, उसके डोर्स हैं, और मतलब आपने कहा बस बहुत बड़ी सी होती है और कार थोड़ा मीडियम होती है, थोड़ी डाउन होती है, हाइट का फ़र्क होता है, शेप का फ़र्क होता है, ये आपको क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। बस और कार में सीटिंग कैपेसिटी का आ जाएगा। वेरी गुड। फिर आप देखते हैं सिटिंग कैपेसिटी पे आते हैं। सिटिंग कैपेसिटी में मैंने आपसे कहा, एक जो जो ऑटोज़ होते हैं, ये जो विक्रम टाइप के ऑटो होते हैं, ये खड़ा होता है, एक कार खड़ी होती है, आप दोनों को देख के बता सकते हैं बड़े इजीली कि एक ये विक्रम ऑटो है और एक ये कार है। अब आप क्या करते हैं, लगभग लगभग दोनों का सेम साइज, शेप, सब कुछ लगभग एक सा होता है। फिर क्या आप देखते हैं, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है उस पर, कंटिन्यूसली काम कर रहा है और आपको परफेक्ट आउटपुट निकाल के दे रहा है। योर ब्रेन इज वर्किंग ऑन दैट। एक आपने साइज पे बात की, वेल डन, इट्स अ वन थिंग। शेप पे बात करी, बिल्कुल। अंदर स्टीयरिंग वगैरह, स्टीयरिंग होगा, गियर्स वगैरह होंगे, अगर हम अंदर बैठे हैं तो जाकर देख रहे हैं। हाँ, गियर्स भी होंगे, अंदर से भी जाके आप चेक करके बता सकते हैं कि इसमें गियर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी आप पता करके बता सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ऑटो इज ओपन, ऑटो इज ओपन और कार इज क्लोज्ड। ऑटो इज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो है वो ओपन है और कार क्लोज है, बहुत बढ़िया।
मैं और थोड़ा सपोर्ट करता हूँ आप लोगों को। आप उसके आगे की हेडलैम्प्स को भी चेक करते होंगे कि कार की हेडलैम्प्स देखते ही पता चल जाती है कैसी हैं। और आप लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया होगा कि काफ़ी लोग जो बहुत फैसिनेट होते हैं कार्स वगैरह को लेके, बाई जस्ट वॉचिंग द कार फ्रॉम द फ्रंट और द साइड, और सिर्फ लाइट देख के बता देते हैं कि कार कौन सी है। कई लोग तो उसका मॉडल भी बता देते हैं। मतलब आई एम ऑलवेज बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन मेरी फैमिली में ऐसे हैं कुछ लोग वेरी नियर एंड डियर जो सिर्फ साइड से कार खड़ी है, उसका कहीं लोगो और टैग नहीं दिखाई दे रहा, बट कुड बी एबल टू मेक मी नो कि ये वो वाली कार है। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज कीजिए अगर मैं मर्सिडीज़ लगी हुई है, और आप मर्सिडीज़ को कैसे पहचानते हैं? मर्सिडीज़ या ऑडी को कैसे पहचानते हैं? लोगो देख के उसका बहुत बढ़िया, 3 क्रॉस बने जो। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं मर्सिडीज़ का, ऑडी का या BMW का लोगो हटा दूं, तो क्या आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये मर्सिडीज़ है, ये BMW है और ये ऑडी है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है पॉसिबल। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। मेरे लिए भी नहीं है। सेम फॉर मी। अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। Now what you are doing up, if suppose that logo is not there, we are unable to, अब जबकि हम कितने एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन ब्रेन्स हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, so until we are not finding a distinguished feature, we would not be able to give the right answer. और ये जो डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं, जो हमने जो ऑटो का या बस का एग्जांपल लिया, शेप का लिया, साइज का लिया, टायर का लिया, लाइट का स्ट्रक्चर का लिया, कलर का लिया, बॉडी स्ट्रक्चर का लिया, बॉडी मटेरियल का लिया, डोर्स का लिया, मतलब अब आप जब भी किसी एक चीज़ को देखते हैं, साइमल्टेनियसली आपका ब्रेन नंबर ऑफ फीचर्स, शायद जितने फीचर्स मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स आपका ब्रेन इमीडिएटली पिकअप करने लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई विच पर्टिकुलर थिंग इज इट। और यही रीज़न है कि जब एक सी दिखने वाली लग्जरी कार के अंदर, क्योंकि हमने उनके फीचर्स को अपने ब्रेन में ट्रेन नहीं किया है। बहुत से लोग हैं जो केवल BMW की बैकलाइट देख के, बहुत BMW का ही मॉडल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये देख के बता सकते हैं BMW का मॉडल है, साइड से गाड़ी निकल के चली जाए बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को, देवर स्पेसिफिक ऑन दैट, और उन्होंने अपने ब्रेन से ये देखा है, चेक किया है कि ये फीचर इसको इस क्लास में कैटेगराइज करता है। सिमिलरली जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब भी हम ह्यूमन ब्रेन्स की बात करते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो बस हो, या कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ को भी आप अपनी, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, आप जरा पूरे कमरे में नज़र घुमा के देखिए, आपको हर चीज़ अलग दिखाई देती है। आपको हर चीज़ अलग दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या है? अगर आपको हर चीज़ अलग दिखाई दे रही है तो इसका क्या रीज़न है? हम उनके फीचर्स पहचानते हैं अलग अलग। सीधा सा रीज़न है कि आप उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और क्योंकि आप उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि फीचर्स का एक्सट्रैक्शन आप कर पाते हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर देख पाते हैं कि ये चीज़ें अपने आप में डिस्टिंग्विश्ड हैं। तो जो एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था जितेंद्र जी ने कि लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा की बात कही थी, तो उसमें यही था कि हम लोग चीज़ों को उनके फीचर्स से अलग करते हैं। हाँ, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें ट्रेन कर दी गई है लेबल डेटा से, तो हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, नाम बता देते हैं। अगर हम नहीं ट्रेन किया गया तो हम ये बता सकते हैं क्या। तो अगर BMW, ऑडी और मर्सिडीज़ के लोगो छुपा दिए जाएं और आपके बगल में एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी कर दी जाए और एक BMW या ऑडी खड़ी कर दी जाए और दोनों के लोगो छिपा दिए हों, तब भी आप ये ज़रूर बता पाएंगे कि ये कोई लग्जरी कार है और ये अपनी स्विफ्ट डिज़ायर है। तो स्विफ्ट डिज़ायर पहचान पाएंगे, ग्रैंड i10 पहचान पाएंगे, वैगन आर जैसी गाड़ी को हम कभी भी पहचान पाएंगे, चाहे उसके ऊपर लोगो लगाओ या ना लगाओ। रीज़न है कि आपने उसके फीचर्स से अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। तो मेरा कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पे इनिशिएट करने का यही था कि जब भी हम यहाँ पर किसी भी डेटा सेट की बात करते हैं, तो डेटा सेट का जो मेन टारगेट होता है मशीन लर्निंग का, वो यही होता है कि हम चीज़ों के फीचर्स उसको दे देते हैं। हम पूरी चीज़ उसे नहीं सिखा सकते। जैसे अभी आप लोगों ने मेरा लिंक्डइन पे देखा था मेरा वीडियो, जिसमें मेरा कैमरा आइडेंटिफाई कर पा रहा था ये कीबोर्ड है, ये माउस है, और ऐसी कोई भी चीज़ आप उसके सामने लेके आएंगे जो उसको मैंने ट्रेन नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको फीचर्स दिए हुए हैं, उन फीचर्स के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करके बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़। और यही रीज़न था कि मेरा जो फोटो फ्रेम था उसका फीचर बुक के कवर से मिल रहा था, तो इसीलिए उसने परसेंटेज जो काउंट करके बताया 78% फोटो फ्रेम को बुक से मैच करा दिया।
तो अल्टीमेटली यहाँ पर टारगेट ये था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स एंड द फीचर्स आर इनफाइनाइट। फीचर्स किसी भी चीज़ के फीचर्स इनफाइनाइट होते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर प्लानिंग टू ट्रेन अ मशीन, वी गिव मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अमंग द लार्ज डेटा सेट एंड फॉर दैट देयर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अ फीचर रिडक्शन और डायमेंशन रिडक्शन। फीचर या डायमेंशन रिडक्शन करने की हम टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे कम से कम चीज़ों को देख के भी हम पहचान पाएँ। जैसे आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है कि जब आप कार को और ऑटो को पहचानते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों में आइडेंटिफाई नहीं करते हो, आप 50 चीज़ों की लिस्ट बना के नहीं चेक करते, आप सिंपली शेप देख के बता देते हो कि ये ऑटो है, ये कार है, ये बस है, ये स्कूटर है, और बाकी कोई चीज़ चेक नहीं। तो यानी कि एक ही फीचर से आप इसको इमीडिएटली चेक करके बता पाते हैं। लेकिन जब कार में और कार में आपको डिफरेंस करना होता है, देन यू गो फॉर मोर। तब आप चेक करते हैं कि हेडलाइट कौन सा है, टायर कैसे हैं, बोनट का शेप क्या है, हाइट कितनी है, दैट्स ऑल लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर। सो वी टॉक्ड अबाउट द क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक और साथ के साथ हमने फीचर्स के बारे में बात की। सो इफ़ एनी क्वेश्चन इज हियर वी कैन हैव अ सेशन मोर, और मीनवाइल इफ यू फील द थिंग्स आर ओके सो वी कैन क्लोज द सेशन। आज मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, माई अपॉलॉजी फॉर दैट। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया हमें। नहीं, और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछे। पर ये फीचर एक्सट्रैक्शन अपने आप में आप चेक करिए, आप जिस तरफ नज़र घुमाएंगे अपने कमरे में आप हर चीज़ को पहचानते हैं, और उसको पहचानते हैं उसके फीचर की वजह से। 2 बॉटल अगर आपके कमरे में रखी है, एक वाटर की बॉटल है और एक सैनिटाइज़र की बॉटल है, तो आप इमीडिएटली देख के पहचान जाते हैं कि ये बॉटल सैनिटाइज़र की है और इसमें पानी है। कितनी क्लैरिटी है, आपने इमीडिएटली फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया। किससे फीचर एक्सट्रैक्ट किया? क्योंकि ये जो बॉटल का शेप है, और इसके अंदर जो कलर वाटर दिखाई दे रहा है, आपको इमीडिएटली पता चल गया ये सैनिटाइजर है। और यहाँ पर आपको ये बॉटल का जो शेप है, ये बॉटल का शेप ये बताता है कि वाटर बॉटल है। इसके अलावा भी अगर मैं कोई कांच की और बॉटल ला के यहाँ पे रखूँ, वो भी आप आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे कि ये दूसरा बॉटल किस चीज़ का है। सो फीचर, दैट्स इंपॉर्टेंट। वेल, thank you once again from my side, and I'll upload this recorded video of today on the YouTube channel that will be available there, और डेटा भी जो मैंने आपको दिया है वो सारा का सारा मैं आपके ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you. Very nice class, sir. Thank you. थैंक यू। And books, sir, books. हाँ, बुक्स भी